Hey guys, so today we'll be going to the question called n queens. Now, in this queen question, what we have been told is that we have to place n queens on n into n chessboard such that no two queens attack each other. So yeah, that's pretty much the problem statement. And the next constraint which has been given to you is that the value of n can range between 1 to 9. So it's a pretty common interview question, and it's actually a very fun, puzzling question also, right? So first of all, you note this thing that what is the output format? The output format is that if a queen is placed, we mark it with capital Q. Otherwise, we mark with the dot operator, right? And that's all you guys need to know about this thing. And okay, let's deep dive into the question. So let me ask you one simple thing. How does a queen move? The queen can move in up to down direction. Then a queen can move from left to right or right to left direction. Similarly, the queen can move in diagonal direction and the queen can move in the opposite, the anti-diagonal direction. ठीक है? Now if we do the count, कितने स्टेट हो गए? कितने स्टेट हो गए जिसमें क्वीन मूव कर सकती है? 1, 2, 3, 4. So the queen can move in these 4 directions. Note that thing. Degree of freedom इसका 4 हो गया. Not exactly degree of freedom, but yeah, somewhat like that. So now we'll see. Note this thing because this will come very handy. So how we actually use this information to process this thing. So obviously the first thing which comes to your mind is that why don't we try a brute force? But brute force will fail. Why? Because eventually the thing is that if you start placing the queens, let me draw a 4 into 4. तो फर्स्ट क्या करोगे? तुम क्वीन को इधर प्लेस कर सकते हो. क्वीन को इधर प्लेस किया हमने. Then we decided that okay, we cannot place it here, we cannot place it here, we cannot place here, right? So, and you cannot place in this direction. Then you thought, oh, let me place the queen over here because it becomes safe. But then you realize you cannot place here, you cannot place here, you cannot place here, you cannot place here, you cannot place here. So, what will end up happening over here is if you try with a brute force approach, you are bound to end up in a scenarios where you will not end up placing the queens in the respective board. मतलब, if you had placed it here, then it would not lead to a good answer. So what it means कि ये एक ये भी combination हो सकता है कि if the queen was not placed over here and instead we place the queen over here, ठीक है? And then we try solving the question. एक ये given configuration हो सकता है. So that's how we're gonna approach this problem. So that's why I say कि जब भी recursion and backtrack में differentiate करना हो, तो the only criteria is that कि जो आपने decision लिया था, मतलब मान लो कि आपने इधर decision लिया था क्वीन को इधर प्लेस करने का, है ना? So you have to undo that. You have to undo that decision and place it somewhere else. जैसे कि मैंने इधर प्लेस किया था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं इसको undo करके इधर प्लेस करके देखता हूँ और देखता हूँ कि बाकी ज़्यादा इससे मैं अपना required state achieve कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. And that's how things work. So this is the core criteria that differentiate a brute force approach with a backtracking based approach, है ना? So now let's see कि इसको solve कैसे कर सकते हैं. So as I had mentioned कि जब भी आप backtracking लिखते हो, backtracking में simple क्या होता है? एक base case होता है. बेस केस इधर क्या हो जाएगा अपना? जब तक n इज इक्वल टू द n इज इक्वल, जो मान लो काउंट लिख दो, ठीक है? काउंट की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होगी? जब भी तुमने एक क्वीन प्लेस किया तब हम काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है? अब बैक ट्रैकिंग का नेक्स्ट फॉलोअप क्या होता है कि यू अपडेट स्टेट या टेक डिसीजन. सिंपल सा, टेक डिसीजन. तो यहाँ पे डिसीजन क्या था हमारा? क्वीन को इधर प्लेस करने का डिसीजन, क्वीन को इधर प्लेस करने का डिसीजन. फिर उसके बाद हम करेंगे रिकर्सिव कॉल टू सी विद द अपडेटेड स्टेट वेदर इट्स पॉसिबल कि n इज इक्वल टू काउंट हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे और वो एक एरे जैसे प्रिंट करें ना, वो भी प्रिंट कर देंगे हम. एंड फाइनली अगर नहीं हो पा रहा, इफ दिस रिकर्सिव कॉल डज नॉट गिव मी द आंसर, जो हमने डिसीजन लिया था पिछला वाला, उसको हम अंडू करेंगे. तो हम कैंसिल डिसीजन बोलते हैं इसको. कैंसिल डिसीजन कर दो उसको.
As simple as that. Nothing fancy. So this is the whole idea about it. But now there comes the core thing over here. कि नोट, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या बोला था कि आपको क्वीन 4 गिवन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है? और हमें क्वीन कैसे प्लेस करना है? क्वीन को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे वो ओवरलैपिंग, मतलब पहले तो ओवरलैप तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, बट एक दूसरे को अटैक भी ना कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को ब्रूट फोर्स में देखोगे तो आप क्या करोगे कि एक जगह आपने क्वीन प्लेस किया, मान लो कि आपने, आप क्वीन जो अपडेट स्टेट कर रहे हो वो कब करोगे? जब आप चेक करोगे कि इस गिवन बॉक्स पे कोई क्वीन अटैक नहीं कर रहा है ना? जैसे कि मेरे को अगर मान लो कि मैंने, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है? मान लो कि मुझे क्वीन को रखना था किसी इस डायरेक्शन में, बट इधर रखने से पहले मैं चेक करूंगा कि इसके रो में कुछ है, या तो इस रो में कुछ है, या तो कॉलम में कुछ है, या तो डायगोनल में कुछ है, या तो एंटी डायगोनल में कुछ है। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, है ना? एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नया ऑप्टिमाइज अप्रोच ढूंढना पड़ेगा। तो नोट वन थिंग, अगर मैं रो वाइज ट्रैवल कर रहा हूँ, मान लो कि अगर मैं रो वाइज ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा काम आसान हो गया। मतलब मैं अगर फॉर लूप चला दूँ पर रो, अब पूछोगे ऐसा क्यों? देखो, अगर मैंने क्वीन पहले इधर प्लेस कर दिया तो गारंटी है कि क्वीन जो नेक्स्ट क्वीन प्लेस करना है वो नेक्स्ट रो में ही होगा। एक ऑब्जर्वेशन तो हमें ये मिल गया, ऑब्जर्वेशन वन, कि if I place my queen on the first row, the next queen which I have to place will be definitely somewhere in the next row. So we don't have to keep looking in the current row which we were at. ठीक है? एंड जब भी, जैसे कि मान लो कि इफ यू हैड टेकन अ डिसीजन टू प्लेस दिस क्वीन ऑन द दिस रो, जब हम नेक्स्ट रिकर्जन कॉल करेंगे वो हम नेक्स्ट रो के लिए करेंगे, नेक्स्ट रो के लिए करेंगे, है ना? सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोना प्रोग्रेस। बट नाउ नोटिस ऑल्सो वन थिंग, इफ समहाउ आई कैन स्टोर द स्टेट ऑफ द कॉलम, अगर हम कॉलम का स्टेट स्टोर कर सकते हैं, मान लो कि एक एन एलिमेंट का, एन इंडेक्स का हमने एरे डिफाइन कर दिया और उसके जीरो पोजीशन पे हमने ट्रू मार्क कर दिया, तो अब होगा क्या कि वो ट्रू क्या इंडिकेट करेगा कि हे लुक, आई नो दैट you were trying to place the queen over here, but there is already a queen which was placed based on some previous decision, so do not place the queen over here. So this was the initial, this is how we gonna use the column one. But now the question arises that how we will treat the diagonal and the anti-diagonal, because I had mentioned queen 4 direction move कर सकती है. We have already handled case of upward and downward, क्योंकि upward and downward कैसा will always go to the next rows. Now about the column one, I told you कि हम एक simple array define कर देंगे and उसी array के चलते हम उसका state देखेंगे कि उस given index, उस given column index पे कोई queen placed है कि नहीं है. But now the only thing which we need to check over here is कि is there any queen which is eventually placed on the diagonals or anti-diagonals or not? So this becomes the core problem. And इसको solve करने के लिए let's first try to imagine how does the diagonal anti-diagonal look in our matrix. So अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ये होगा 0,0, ये होगा, इसको थोड़ा और लेफ्ट में कर देता हूँ, ये होगा 0,0, ये होगा 0,1, ये होगा 0,2, ये होगा 1,0, 1,1, इसका हो जाएगा 1,2, 2,2, इसका हो जाएगा 1, 2,1 एंड फाइनली 2,0, है ना? तो अभी मैं देखूं, ये डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले डायगोनल्स में। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि डायगोनल्स कितने होंगे। तो देखना, ऊपर वाले रोज एन डायगोनल्स बना रहे हैं, ऊपर वाले रोज एन डायगोनल्स बना रहे हैं, और ये वाले रोज कितने बना रहे हैं? मतलब एन क्या है बेसिकली, एन इज इक्वल टू 3 अभी तक फिलहाल तो, बट अगर जितने पहले ऊपर के 3 डायगोनल्स बना रहे हैं और यहाँ पे नीचे के बचे हुए n-1 बना रहे हैं, तो टोटल कितने डायगोनल्स बन रहे हैं? तो टोटल बन रहे हैं n, इसको ऐसा भी लिख सकते हो यार, n प्लस n-1, यानी कि हो गए 2n-1, बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज की, डू यू सी एनी पैटर्न ओवर हियर? डू यू सी एनी पैटर्न? अगर मैं रो और कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि रो एंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है? पहले ही देखता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? रो माइनस कॉलम -2, है ना? यहाँ पे क्या मिलेगा? रो माइनस कॉलम -1,
क्योंकि यहाँ पे भी देखना रो माइनस कॉलम क्या आ जाएगा, रो माइनस कॉलम -1 आ गया फिर से। तो ये पूरा डायगोनल -1 है। और यहाँ पे भी देखोगे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप रो माइनस कॉलम करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रो माइनस कॉलम करोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगा। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि देखो, जो एलिमेंट्स एक डायगोनल के लाइन में हैं वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न क्या बोल रहा है मुझे कि देखो, द पैटर्न कैन see that the value of this the unique value which this diagonal give me range between -2 to 2, बट अरे तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता, अरे तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता, इसको हमें अपशिफ्ट करना पड़ेगा। अपशिफ्ट कितने टाइम से करेंगे, मतलब 2 टाइम से करना पड़ेगा इसको बेसिकली, है ना। इसको 2 से ज़्यादा, उसको अगर 2 से ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 to 4 के बीच में एक आरे रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अभी अभी आप पूछोगे तो ये एरे का यूनिक एलिमेंट तो बना रहा है, बट इसमें जब भी एक यूनिक एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये कैलकुलेशन के वक्त, जैसे कि हमने क्वीन को, अब मानते हैं कि क्वीन को मैंने इधर प्लेस कर दिया, तो इधर -2 एक्चुअल एक्चुअल एरे में थोड़ी -2 डालेंगे, मतलब -2 थोड़ी होता है इंडेक्स। तो हमें वो -2 के करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट उस इंडेक्स पे ट्रू लिखना है। कैसे करेंगे, तो देखिएगा, जो हमने अपशिफ्ट किया था -2 + 2, ये +2 क्या कर रहा है, ये इसको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर दे रहा है आप। और ये +2 आएगा कैसे, पहले ये देखते हैं। मान के चलो कि 4 into 4 था, तो इसमें सबसे लोएस्ट एलिमेंट इधर रो माइनस कॉलम क्या हो गया, -3। मान के चलो 5 into 5 है, तो इसमें सबसे लोएस्ट एलिमेंट क्या हो गया, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट 0,5 होगा। और इसका अगर इंडेक्सिंग निकालें तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना यार, सॉरी माय बैड। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, 6, इसका करेंगे माइनस तो -5 आ जाएगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या कि ये n, ये एट दी एंड n-1 ही है। अगर n की वैल्यू मैं 3 लिख रहा हूँ तो ये क्या वैल्यू हो गई, n-1। तो जो भी वैल्यूज निकल के आ रहे हैं डायगोनल में, बोलने का मतलब क्या, अगर जो भी देखो पहले -2 निकला, -1 निकला, 0 निकला, अगर इसमें n-1 ऐड कर देंगे तो जो एरे है अपना वो जीरो बेस इंडेक्सिंग बन जाएगा। ठीक है। नाउ सिंस वी हैव सॉल्व दिस पार्ट, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, एंटी डायगोनल्स के बारे में। एंटी डायगोनल्स भी कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं कि नहीं करे, पहले ये देखते हैं। तो ये 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, सॉरी 1,1, 1,2, 2,2, फाइनली दिस विल बी 2,1 एंड 2,0। सो हमने पहले लेफ्ट ये डायरेक्शन में गए थे, अभी हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। मेरे को दूसरा कलर यूज करने दो। अभी हम ये वाले डायरेक्शन में जाएंगे। अब नोटिस करना ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, सबका अगर रो प्लस कॉलम का समेशन लेंगे, रो प्लस कॉलम इंडेक्स का समेशन, तो वैल्यू क्या आएगा, 0 + 0। यहाँ पे भी वैल्यू आएगा 1 + 0, 0 + 1। तो एक कांस्टेंट फॉलो हो रहा है। तो एंटी डायगोनल का कुछ इतना गेम ही नहीं है इसमें, है ना। एंटी डायगोनल कुछ फैंसी चीज ही नहीं है इसमें बची अब, क्योंकि ये आएगा 0, 1, 2, 3, 4। एंड नोटिस वन थिंग, अगर ये 2n-1 है तो एंटी डायगोनल कितने होंगे, वो भी 2n-1 होंगे। So that's all, guys. That's all. I think so. If you understand this much part, that's everything which you require to solve this given question. So अब तुम्हें करना क्या है कि यही क्वींस में अभी आपको बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई करना है। पहले आपको एक क्वीन इधर रखना है एक रो पे, और देखना है कि उसको रखने से क्या मैं नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में मैं एक दूसरी जगह क्वीन रखने की कोशिश करूंगा, उस जगह पे जहाँ पे वो क्वीन सेफली मैं रख सकूँ और उस पर कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ। और वो पोजीशन जानने के लिए मैं पहले 3 चीज़ को कंसल्ट करूंगा। वो 3 चीज़ क्या है, मेरा कॉलम एरे उसको मैं कंसल्ट करने वाला हूँ। फिर मैं अपने डायगोनल्स और एंटी डायगोनल को कंसल्ट करूंगा। 3 लोगों को मैं पूछूंगा कि यार देखो, क्या मैं अपना क्वीन इधर रख सकता हूँ कि नहीं। अगर उनसे हाँ मिलता तो हम क्वीन को रख के देखेंगे। एंड अगर वो क्वीन प्लेसमेंट सही जा रहा है, अगर क्वीन प्लेसमेंट कहीं ऑब्वियसली इधर नहीं रख सकते, बट वो क्वीन प्लेसमेंट सही जा रहा है तो दैट मीन्स वी कैन कंटिन्यू अहेड। अगर नहीं है तो फिर हमें सबको वो स्टेट कैंसिल करके एक नया स्टेट चूज करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ बेसिकली इट वर्क्स। सो नाउ आई थिंक सो, लेट मी शो यू द कोड एक्चुअली। द कोड इज नॉट प्रीटी मच फैंसी। So first of all, you need to store all the like you need to return the string format, right? So you store all the solutions, and the next thing is that you initialize the board.
सो आई टोल्ड यू कि आप पहले सबको सेफ स्टेट मतलब एम्प्टी प्लेस डॉट से मार्क कर दो. नेक्स्ट थिंग इज दैट आई टोल्ड यू कि हमें 3 लोग से कंसल्ट करना है, कॉलम, डायगोनल, एंटी डायगोनल. नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज दैट कि जब भी बैक ट्रैकिंग कर रहे हो बेस केस लिखो. बेस केस क्या हो गया, जैसे ही हम लोग रो इज इक्वल टू एन पे पहुंच गए, ये भी डाल सकते हो अपना बेस केस में, या तो फिर क्वीन का काउंट भी डाल सकते हो. इट्स अप टू यू टू डिसाइड द बेस केस, बट आई हैव चोजन द कि इफ लेट्स से दैट कि हम लोग लास्ट रो पे पहुंच गए और लास्ट रो पे फिर से हम एक रिकर्सिव कॉल करेंगे. n+1 पे थे हम रो पे, पर हम जब फिर से रो पे कॉल करेंगे तो n हो जाएगा. एन क्योंकि n-1 पे थे, फिर हम जैसे ही पहुंचे नेक्स्ट पे तो n हो जाएगा और फिर हमारा रो का वैल्यू क्या है, रो क्या हो जाएगा n. तो हम एक रिजल्ट पुश बैक करेंगे और रिटर्न कर देंगे. फिर हमने डिस्कस किया कि देखो एंटी डायगोनल, मेन डायगोनल और एंटी डायगोनल को कैसे स्टोर करना. तो यहाँ पे मैंने बताया कि देखो रो -j -2 रिटर्न करेगा, बट हमें क्या करना है, उसको जीरो बेस इंडेक्सिंग पे फिक्स करना है. तो जीरो बेस इंडेक्सिंग आ गया हम लोग का. फिर एंटी डायगोनल जैसे डिस्कस किया था, बस रो और कॉलम कॉलम को ऐड करो. और हम पहले डिस्कस करेंगे तीनों लोग से कि यार देखो मैं क्वीन रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ. अगर तीनों लोग बोलते हैं कि हाँ रख सकते हो तो हम लोग प्लेस क्वीन करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग रिवर्ट कर देंगे उस. नहीं, अगर नहीं कर सकते तो कंटिन्यू करेंगे, हम नेक्स्ट जगह ट्राई करने वाले हैं. ठीक है. एंड ये चीज हमने डिस्कस कर लिया. अब बचा है कि प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन. नाउ जब भी हम क्वीन प्लेस कर रहे हैं तो हम 4 स्टेट अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, वो 4 स्टेट क्या है, पहले तो हम बोर्ड अपडेट कर रहे रहेंगे, है ना. उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं अपना कॉलम, उसके बाद डायगोनल एंड एंटी डायगोनल. फाइनली वी विल डू अ रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव टू द नेक्स्ट रो, जैसे मैंने डिस्कस किया था. एंड अगर वो आंसर रिटर्न कर पा रहा है, मतलब मान लो कि इधर से आंसर आ पा रहा है, तो इट इज वेल एंड गुड. अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि इस गिवन स्टेट से हम क्वीन रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट पोजीशन ट्राई करेंगे, है ना. सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल यू नीड टू वरी अबाउट. So I think so it gives a clear hint how we can solve this question. Let me know if you have any questions, and thanks for watching.